first we should understand that coins or coinage system has something to do with what we can say exchange activities. So when we have primitive communities, smaller communities, communities with lesser number of people familiar with one another, barter system can serve the purpose. But once we have diversification of economic activities, craft specialization, expansion of exchange network, barter system can continue but not capable of serving what we can say the needs and requirements of the economies. So that's why we have the need of the coins. Before coins, we find use of bullion, that is precious metals like gold and silver. And before gold and silver, we also find what we can say use of food grains, something that was commonly acceptable to everyone. So as we move from primitive societies to more advanced societies, and if we decide the sequence of evolution, initially we have barter system, then we have use of food grains, then we have use of precious metals, then we have use of coins, then we also have use of token currency, and today we have reached a level when we are talking about bitcoins and no other digital coins. Yes. So in this spectrum of development, what is the position of Indian culture? Something that we are going to understand today in this revision class number 8. Is that clear? So if we take note of the coinage system, we are going to proceed gradually, taking note of prehistoric, then protohistoric, then historical societies. We are also going to take note of different dynasties and their association with coins, their approaches towards coinage system. But most of the time, what we find is that coins are less associated with dynasties, more associated with economic development or the economic system. So in primitive societies, we cannot expect coinage system because of the simplicity of their production system. That's why we can easily exclude prehistoric societies. Prehistoric societies were simple societies based on subsistence strategies. Their exchange activities were not well developed, their economic activities were not well diversified. But then beyond prehistoric cultures, if we take note of the Indus Valley civilization, here this is something that can be very interesting to know, that Indus Valley civilization was urban civilization, and an urban civilization is a civilization which is based on craft activities, based on trade activities. That is, urban is something which is not rural. So urbanization even today, as per the census definition, that urbanization and urban center is identified mainly with non-agricultural activities. That a center where more than 75% of the male population engaged in non-agricultural activities, population density is not less than 400 persons, and total population is also not less than 5,000. This is how we identify urbanization and urban centers. So this is for our purpose as part of the modern census definition, but even in history we can follow the same approach. Urbanization is mainly about non-agricultural activities, that is a shift from primary activities to secondary and tertiary activities. When we have increasing craft specialization, when we have extension of exchange network, and that's why we need the medium of exchange. Now what is so special about the Indus Valley civilization is that it was an urban civilization, and as urban civilization it had a rich agricultural base, because without this rich agricultural base we cannot have diversification of its economic activities up to the level of urbanization. And it is known for its trade connections, external trade. It traded with the Mesopotamian culture, it traded with even Central Asia, lapis lazuli. But what is so interesting about this is that till now in archaeological excavations, we do not find any evidence of metallic coins. We do not identify, we have yet not discovered anything that can be identified as coins of the Indus Valley civilization. So coins we cannot expect in prehistoric societies. They are expected in the Indus Valley civilization, but quite ironically, in archaeological excavations, till now we have not discovered anything that can be identified as the coins of the Indus Valley people. So this can be asked as a statement. First statement, Indus Valley civilization was an urban civilization. Second statement, it was based on extensive exchange network. That is also correct. Third statement, it had rich agricultural base. That can also be correct. But if they ask you that
it had well developed coinage system, so that statement we cannot accept as the correct statement. And incidentally, let me tell you, same is the case with agricultural tools and implements, that despite having a very rich agricultural base, this civilization has not produced agricultural tools and implements in the archaeological excavations. So prehistoric societies, coinage not required. Indus Valley civilization, coinage system is expected, and there must have been some coinage system, but the problem is that we don't know about the coinage system of the Indus Valley civilization. Yes, in the absence of coins, some people say that Indus seals were used for two purposes. They were used for marking the private property, and perhaps they also had some role in the exchange activities. Now, in what way those exchange activities of the Indus Valley civilization were supported by the seals of the civilization is something that we don't exactly know. But in the absence of coins, there is a general tendency to accept the seals of the civilization also as part of exchange activities. Now, as we well know that after the Indus Valley civilization, we have the Vedic civilization, and in the Vedic civilization we identify two phases, Rig Vedic and later Vedic. Now, in one of our revision classes we discussed that here in Rig Vedic phase we have the economy that can be identified as agro-pastoralism, and in agro-pastoralist societies again we don't have even the well developed rural society. Here societies are supposed to be nomadic, moving from one place to another. People in different groups also may have chance interaction, and they can exchange some commodities as barter system. Those who are part of the same society, they are well familiar with each other, one another, so they can also rely upon the barter system. Moreover, in agro-pastoralism, surplus production is very limited, and if surplus production is limited, diversification of economic activity is also limited, and if diversification of economic activity is limited, exchange network is also not well developed, and if exchange network is not well developed, then there is no need for coins. Necessity is the mother of invention. So even here also some primitive exchange can be expected. So here we assume use of the barter system and occasional use of the cows as the medium of exchange. This is the situation of exchange system in the first half of the Vedic civilization. This is not the context to talk about its chronology that we have discussed in separate classes. We know the chronology, so we are just paying attention to the exchange network and the how we have the evolution of the coinage system in India. So barter system and cows perhaps supported Rig Vedic economy. Exchange activities were very limited. But in the later Vedic time, we know there was a shift towards agriculture, from agro-pastoralism to agriculture. And in agriculture we can have greater surplus production, and because of this greater surplus production we can expect greater diversification, a more complex kind of exchange network that perhaps could not be supported only by what we can say the barter system and the cows, which the Rig Vedic people were familiar with. That's why in the later Vedic time we find something new development, and that is use of bullion. Bullion is nothing but pieces of precious metals, and in the later Vedic literature we have some terms like Suvarna, like Nishaka, like Satmana. These kind of terms are used in the later Vedic literature, and they are supposed to be the pieces of precious metals, that is bullion, used as medium of exchange. But since they were not properly minted coins, we cannot say that in the later Vedic time we have the appearance of the coinage system. We can't go to that extent, but we can appreciate that the economy in the later Vedic time became more complex, and since it became more complex,
it needed some sort of medium of exchange, and that was perhaps, apart from barter system and cows of the early days, we also have precious metals which are mentioned as Suvarna, Nishaka and Satmana. They can ask you, Suvarna, Nishaka, Satmana in the later Vedic literature were. So they were not coins, they were not properly minted coins, not marking the beginning of coinage system, but they can be identified as pieces of precious metals facilitated a relatively complex exchange network that developed in the later Vedic time due to a shift from agriculture, agro-pastoralism to agriculture or rural economy in the later Vedic time. So we cannot understand coinage system without making reference to the economic life of the time. Now, the next phase of coinage system is associated with something that we say post-Vedic, and post-Vedic is very important. When we say post-Vedic, we generally include the time 600 BC to around 300 BC, and this was the time when we have once again urbanization in India, but this urbanization took place in the Gangetic Valley, and this urbanization was taking place for the second time in Indian history. So that is also known as the second urbanization, Gangetic Valley. It was in this urban context we have new technological developments, new ideological developments. At times we also relate the rise of Buddhism, Jainism as part of the same context. So we are all familiar with second urbanization and its tendencies. And urbanization cannot take place without diversification of economic activities, without increasing craft specialization, without expansion of exchange activities. So by the time we reach this phase of Indian history, second urbanization, which is distinguished from the first urbanization, Indus Valley civilization is treated as first urbanization. Now, necessity is the mother of invention. Urbanization means a complex economy. Complex economy requires what we can say a complex kind of exchange, and complex kind of exchange requires medium of exchange. Now, this was not only about second urbanization. During this time, we also find a state formation. A state formation, that is, you must have heard of Mahajanpadas. These two remarkable developments we can take note of in the post-Vedic time. Now, second urbanization needed coins because economic activities cannot be supported without them. And the related development, that is estate formation in form of appearance of Mahajanpadas, also needed coins because coins are with time not only used for exchange activities but also used for marking the political authority. राजनीतिक सत्ता के पर्याय के तौर पर भी, उसकी पहचान के तौर पर भी सिक्कों का इस्तेमाल होता है. It is for this reason perhaps in this overall context we have coins which are known as punch marked coins. Now with punch marked coins we can say we have the beginning of Indian coinage system, and punch marked coins in the overall context of second urbanization till Mauryas we can say we have the punch marked coins. Maybe even after Mauryas punch mark technique was widely used. Now punching is something that we know, this is part of metallurgical skills, that when we punch a coin, that is a lesser kind of technology or less developed technology. A more developed technology is casting technique, that is molds are used for making coins. Now these punch marked coins in India mark the beginning of Indian coinage system, and they are the earliest coins of India. Some details about punch marked coins may be important. This name was given to these coins by James Prinsep. James Prinsep was a very famous Orientalist, known also for decipherment of the Brahmi script, in which we have the edicts of Ashoka. So the same person came across these coins and used this term or coined this term to refer to them, James Prinsep.
Later on, when technology became more important in historiography, and particularly we have Marxist history writers, we have one of them whose name was D.D. Kosambi, who is supposed to be pioneer of Marxist history writing in India. He is also supposed to be a pioneer of what is known as ethnographical approach to history writing, that is anthropology. The person who also talked about living history. Now the same person also took interest in a study of the coins after James Princip. James Princip was in the 18th century. Now these two names we can know or we can remember in context of the study of the coins of the 6th century BC, which are known as the punch marked coins. Now they are made of silver. Occasionally we also find use of copper. Since they are made by using a technique that is known as hammering technique, that's why they are known as punch marked coins. In Hindi we have a more meaningful term. हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वर्ड होता है आहत सिक्के. आहत का मतलब होता है घायल होना. तो ये घायल इसलिए हुए थे कि इन्हें हथौड़े से पीट कर बनाया गया था, धातु को, मेटल को गर्म करके एक लेवल तक और फिर उसको पीट कर. इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये होती है कि इनका जो एस्थेटिक सेंस है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा. सो वी हैव नो रेगुलरिटी in shapes, in shape and size. इनके शेप और साइज रेगुलर हमें नहीं मिलते, इरेगुलर. आप समझ सकते हैं कि व्हेन द टेक्निक इज हैमरिंग वी कैन नॉट कंट्रोल द शेप्स एंड साइज ऑफ द कॉइन्स. इन कॉइन्स के बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग देख सकते हैं कि सिंस these coins lack something that we call legends. So they lack legends. Legends are basically anything inscribed on a coin. Anything inscribed on a coin is called legend. तो अगर legends नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि we cannot be related to any agency. किसने इनको इशू किया ये हमें नहीं पता. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. स्टेट ने इशू किया कि किसी ट्रेडिंग गिल्ड ने इशू किया, बिकॉज इन द 6th century BC वी ऑल्सो फाइंड राइज ऑफ ट्रेड गिल्ड्स. निगम जिसे कहते हैं वो भी कॉइन्स इशू कर सकती हैं, क्योंकि जब किसी का नाम ही नहीं लिखा है तो वी एक्चुअली डोंट नो कि हु इशूड दोज कॉइन्स. लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ कॉइन्स जिनके ऊपर हील्स हैं, हील्स एंड क्रेसेंट जिसको आधा चांद कहते हैं, या पीकॉक है, ये शायद मौर्याज ने बाद में इशू किए, चूँकि इनका एक्सटेंशन ज़्यादा है, इनका एरिया ज़्यादा है. वी नो मौर्याज एस्टेब्लिश्ड एन ऑल इंडिया एम्पायर. बाकी कॉइन्स हो सकता हो कि महाजनपदाज जो बहुत सारे उभरे थे अराउंड 6th century BC, उन्होंने इशू किए हों इन कॉइन्स को. मौर्यन एज तक आते आते कॉइनेज सिस्टम इतना डेवलप हो गया था कि मौर्याज यूज्ड टू पे देयर सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स इन कैश. और मौर्यन एज तक कैश के लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पना, कर शापना. आपसे पूछा जा सकता है कि ये वर्ड्स किसके लिए यूज हुए हैं, तो पॉसिबली फॉर द सेम पंच मार्क्ड कॉइन्स, जिनमें से कुछ हो सकता हो कि स्टेट के साथ रिलेटेड हो, हालांकि डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं कह सकते. फिर कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे एक और वर्ड है पुराना, धारणा, जिसको शायद हम लोग रखते हैं, धरते हैं, धरना. इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं उस समय के लिटरेचर में. अगर आपसे पूछे कि इस तरह के वर्ड्स किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कॉइन्स के लिए, एंड पार्टिकुलरली फॉर द पंच मार्क्ड कॉइन्स हुज एजेंसीज आर नॉट नोन टू अस.
दैट इज कॉइनेज सिस्टम ड्यूरिंग द 6th century BC। लेकिन हाँ, न्यूमिस्मेटिक्स जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ क्वाइंस, जिससे कि हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में भी हमें हेल्प मिलती है, अगर उस एंगल से देखें तो स्टेटमेंट अगर दे तो चूंकि इनके पास लीजेंड्स नहीं हैं, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री हैज़ हार्डली बिन रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पंच मार्क्ड कॉइंस। लेकिन हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ये हम बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे हैमरिंग टेक्निक, या फिर जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मोनेटाइजेशन, ये हम आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री जिसको हम इन जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री कहते हैं, एक्सचेंज एक्टिविटीज़ कितने कितने दूर तक होती, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसको वो रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने में हम लोग कामयाब नहीं हुए हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑन दिस कॉइन्स वी जनरली डू नॉट फाइंड लीजेंड्स, नथिंग इज इंस्क्राइब्ड ऑन दिस कॉइन्स। So we have just talked about the coinage system associated with the second urbanization, or a period for Mauryas and Mahajanpadas. There we have silver coins, occasionally copper also, made by using hammering technique known as Karshapan, Pana, Purana, Dharna, etc. And these are uninscribed coins, and so politically not very important, but they can help us in reconstructing technological and economic history of the second urbanization. And remember just two names associated with this coins: James Prinsep, जिन्होंने पंच मार्क वर्ड का इस्तेमाल किया, and D.D. Kosambi, a Marxist historian who talks about these coins, who is known for a study of these coins. और बावजूद इसके कि कोई डेफिनेट एजेंसी नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि इनमें से कुछ कॉइन्स मौर्याज या महाजनपदास से जुड़े होंगे। जो ख़ास तौर से हिल्स क्रेसेंट वाले और पीकॉक वाले हैं, उनको हम मौर्यन डायनेस्टी से जोड़ते हैं। दिस मच इज क्लियर। नाउ बियॉन्ड दिस पीरियड, सो सम अप करने के लिए, प्री हिस्टोरिक, नो क्वेश्चन ऑफ कॉइनेज, प्रोटो हिस्टोरिक, that is IBC, coins not found. We cannot rule out the possibility because circumstances are suggestive of their existence. Without coins we cannot have urbanization to such a high degree, to such a high level. लेकिन not found, पहली बार found कब? Sorry, here वैदिक टाइम, वैदिक टाइम में खास तौर से later Vedic time we have use of bullion, and अभी हम लोगों ने बात की है किसकी? Post Vedic time. This is summary to facilitate your memory and to consolidate things. Here we have coins, and these coins are punch marked coins, and we have just had a discussion on the punch marked coins. अब हम पांचवें टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो पांचवा फेज आएगा, जिसको हम इसमें पोस्ट वैदिक टाइम में हम मौर्यास को भी शामिल कर लेंगे अगर कॉइनेज की बात होगी तो, दैट इज पोस्ट मौर्यन टाइम। पॉलिटिकली आपको पता है कि पोस्ट मौर्यन टाइम में वी हैव शुंगा, सातवाहनाज, संगमेश डायनेस्टीज इन द साउथ, एंड फॉरेन रूलिंग ग्रुप्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लाइक शकाज, पार्थियंस एंड कुशानाज, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स। ये उस दौर में अगर हम देखें तो इंडियन क्वाइनेज सिस्टम का मैक्सिमम एक्सपेंशन मिलता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट मिलता है। रीज़न ये था कि पोस्ट मॉरियन चूँकि कॉइन्स कैन नॉट बी मिंटेड इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में तो हो नहीं सकते, या तो इकोनॉमी की ज़रूरत को सर्व करें या पॉलिटिक्स की ज़रूरत को सर्व करें। इस समय इकोनॉमी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें, सो दिस वाज द क्लाइमेक्स ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन,
अब कह सकते हैं कि विच हैड बिकम क्लाइमेक्स ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन, which had become what we can say all India phenomenon. नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, इस समय अर्बनाइजेशन लगभग हर इलाके में हो रहा है. जहाँ अर्बनाइजेशन होगा, जहाँ एक्सचेंज नेटवर्क होगा, वहाँ क्वाइंस की ज़रूरत होगी ही होगी. तो पोस्ट मॉरियन एज यानी कि अगर क्रोनोलॉजिकली इसको देखें तो फ्रॉम 200 BC टू 300 AD, ये जो लगभग 500 ईयर्स का टाइम है. पॉलिटिकली तो इसको कुछ लोगों ने डार्क एज कहा है, लेकिन कल्चरली और इकोनॉमिकली ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फेज़ है इंडियन हिस्ट्री का. उसी सिग्निफिकेंस का एक डायमेंशन है कि दिस टाइम वी हैव क्लाइमेक्स ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन विच वाज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और दूसरा कि अर्बनाइजेशन ऑल इंडिया फेनोमेनन बन जाता है. और इस समय अगर हम देखें तो कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे वी हैव शुंगाज, कनवाज एज पोस्ट मॉरियन डायनेस्टीज. सेंटर का डिक्लाइन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नहीं है. लेकिन हाँ, वी हैव अराइवल ऑफ फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज, अराइवल ऑफ फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज. इसी समय हम देखते हैं कि वी हैव राइज ऑफ सातवाहनाज इन द दक्कन. इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें क्वाइनेज सिस्टम को समझना होगा. और थर्ड, वी हैव संगम एज डायनेस्टीज. वी हैव संगम एज डायनेस्टीज, चोलाज, चेराज, पांड्याज का नाम आपने सुना होगा. इन द साउथ, इनको आप कह सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि स्टेट फॉर्मेशन पहली बार हो रहा है. So economically, climax of the second urbanization. Politically, we have three major tendencies. Of course, declining Mauryan Empire we are ignoring because that topic is not relevant from this point of view. But this three, arrival of foreign ruling dynasties, rise of Satavahanas in the Deccan, and Sangam age dynasties in the far south. ऐसा माना जाता है कि ऐसा टाइम था जब इंडिया का ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, अपने क्लाइमेक्स पर था. और सिर्फ रोमन एम्पायर के साथ ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी इंडिया का ट्रेड फ्लोरिशिंग था. और ट्रेड विद द रोमन एम्पायर में नॉर्थ का, साउथ का, दक्कन का सबका पार्टिसिपेशन था. लेकिन ऐसा लगता है कि इनका और इनका, यानी कि दक्कन के एरियाज़ का और साउथ के एरियाज़ का कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेशन था. इन सब का असर क्वाइनेज सिस्टम के ऊपर पड़ने जा रहा है. तो क्वाइनेज सिस्टम और क्वाइंस इन द पोस्ट मॉरियन एज, दैट इज फ्रॉम 200 BC टू 300 AD, कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ two interrelated developments. First, related to economy, that is the climax of second urbanization. Second, related to political developments consisting of primary state formation in the extreme south, secondary state formation Satavahanas in the Deccan, and arrival of foreign ruling dynasties in the northwestern areas and western areas. इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वाइंस की बात करते हैं. हम लोग शुरू करते हैं इंडो ग्रीक यानी कि फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज़ के साथ. और क्वाइनेज सिस्टम के हिसाब से ये जो टाइम है उसको इंडिया का सबसे डेवलप टाइम माना जाता है. इस फेज से सबसे ज़्यादा क्वाइंस मिले हैं. यह भी अपने आप में एक पीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कब हमें या किस फेज से हमें सबसे ज़्यादा क्वाइंस मिलते हैं. तो यही फेज है, फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज, क्वाइंस ऑफ द फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज. इसमें सबसे पहले आने वाले थे इंडो ग्रीक. इंडो ग्रीक को हम लोग बैक्ट्रियन ग्रीक भी कहते हैं. ये एक ऐसे एरिया से आए थे जिसका नाम था बैक्ट्रिया, सो दे आर नोन एज बैक्ट्रियन ग्रीक्स. इनको कभी कभी हेलेनिस्टिक ग्रीक भी कहते हैं. हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के साथ इनका रिलेशन था. अब इनके साथ इंडियन क्वाइनेज सिस्टम या इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स में एक तरह से रिवोल्यूशन होता है. ये लोग कहाँ से आए थे, अपने साथ क्या टेक्निक लेकर आए थे?
इनके रूट में जाकर, इनके पास्ट में जाकर हमें ट्रेस नहीं करना है। लेकिन इनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कास्ट क्वाइंस, दिस इज नॉट कास्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट क्वाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। आप याद करो कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में जो पंच मार्क्ड क्वाइंस थे, दे वर मेड बाय यूजिंग हैमिंग टेक्निक, कास्टिंग टेक्निक नहीं थी। तो मेटलर्जिकल स्किल में इंप्रूवमेंट इससे सजेस्ट होता है कि नहीं, कास्ट क्वाइंस से। कास्टिंग टेक्निक दैट इज यूज ऑफ MOULDS, यूज ऑफ माउल्ड्स, यानी कि आप हीट ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, आप मेटल को मोल्ड कर सकते हैं, फिर उसके बेसिस पर उसको ढाल सकते हैं। सो दिस स्टार्ट्स विद द इंडो ग्रीक। इनके साथ एक और चीज़ है कि दे इशूड गोल्ड क्वाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। गोल्ड का इस्तेमाल एक्सचेंज के लिए होता रहा था, पहले भी होता रहा है, लेटर वैदिक एज में हम लोगों ने देखा था प्रीसियस मेटल्स। लेकिन अगर क्वाइंस की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम गोल्ड क्वाइंस वर इशूड एंड यूज्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द रूलर्स हु आर नोन एज इंडो ग्रीक रूलर्स। बहुत ज़्यादा इनके गोल्ड क्वाइंस नहीं है, लेकिन मिलते हैं। तीसरी चीज़ इनके क्वाइंस के बारे में ये है कि ये सब पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वाइंस विथ लीजेंड्स, दैट इज इंस्क्राइब्ड क्वाइंस, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड क्वाइंस। इसलिए दे आर वेरी यूजफुल इन पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग। बल्कि जो रोमन इंडो ग्रीक रूलर्स हैं इंडिया में, उनकी जानकारी हमें मेनली उनके क्वाइंस के बेसिस पर ही मिलती है। अराउंड 50 रूलर्स, उससे भी ज़्यादा हो सकता हम इनके बारे में जानते हों, जिसमें से 7 or 6 आर नोन ऑन द बेसिस ऑफ अदर सोर्सेज। रेस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विथ व्हाट वी कैन से दे आर नोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वाइंस। तो मोस्ट ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर्स के नाम, उनकी हायरार्की, उनकी जीनियोलॉजी, एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड, जिसके लिए बस एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, अभी उसके डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, कि दे कैन बी यूज्ड इन राइटिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री बिकॉज दे आर क्वाइंस विथ लीजेंड्स, दैट इज दे आर इंस्क्राइब्ड क्वाइंस, वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, रूलर्स का नाम मिलता है। और सुनो, एक और चीज़ इनके बारे में है कि दे कैरी पोर्ट्रेट ऑफ द किंग्स। सीधे सीधे उनकी फोटो दिख जाती है, तस्वीर दिख जाती है, बहुत ही क्लियर, पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, पोर्ट्रेचर। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं इंडो ग्रीक लोगों के जो कि उनके क्वाइंस को दूसरे के क्वाइंस से अलग करते हैं। और इसके साथ ही माना जाता है कि इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ क्वाइंस, ये एक अपने नए लेवल पे पहुंचता है, जहां से कि क्वाइंस का एक डेफिनेट यूज होने लगता है इन द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। So among foreign ruling dynasties, we talked about Indo-Greeks. They came around 2nd century BC and they introduced the casting technique, cast coins for the first time. They also issued gold coins for the first time, coins with legends for the first time. So most of the time, rulers of Indo-Greek lineages are known on the basis of their coins. एंड दैट इंक्लूड्स दैट फेमस मिनांडर ऑल्सो। मिनांडर का नाम आपने सुना होगा, और किसी रूलर का नाम जाने ना जाने, लेकिन मिनांडर जिसको कि नागसेन के साथ डिबेट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए जाना जाता है, जिसके नाम पर एक किताब भी है मिलिंदा पन्हो, उसकी भी जानकारी हमें अगर लिटरेरी सोर्सेज से होती है तो उसकी जानकारी हमें क्वाइंस से भी होती है। यानी कि इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी और आर्कोलॉजी का लिटरेरी रेफरेंसेस के साथ कोरोबोरेशन, ये दोनों चीज़ें इंडो ग्रीक के साथ एक नए लेवल पे पहुंचती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स बिकम्स मोर रिफाइंड, मोर यूजफुल विद द अराइवल ऑफ फॉरेन रूलिंग ग्रुप्स एंड पार्टिकुलरली विद द इंडो ग्रीक्स। इस कंक्लूजन के साथ ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के पार्ट हो सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इंडो ग्रीक के बाद पार्थियंस हैं, उनके कॉइन्स हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन सकाज के कॉइन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सकाज में मोस्टली रूल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जैसे मालवा गुजरात का जो इलाका है, सौराष्ट्र का इलाका है, उस इलाके में ये रूल करते हैं। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लोग साका रूलर्स की बात करते हैं, कुछ रूलर्स जैसे गिरनार इंस्क्रिप्शन के साथ रुद्र दमन जुड़ा हुआ है, या और भी, लेकिन यहाँ उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। बस इतना जानो कि शकाज इन इंडियन हिस्ट्री आर नोन फॉर देयर सिल्वर कॉइन्स। उस इलाके में सिल्वर कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, और जब उस इलाके पर गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता सेकंड ने कंट्रोल कर लिया, तो उसने भी लोकल ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करते हुए उस इलाके में सिल्वर कॉइन्स ही चलाए। इज दैट क्लियर? उसी तरह से यहाँ पर एक और चीज़ देख लो कि इनमें क्रोनोलॉजी बहुत ही क्लियर है। स्पेसिफिक डेट्स आर मेंशन्ड एंड दैट इज साका एरा, जो कि 78 AD से शुरू होता है। 78 AD से शुरू होता है शाका एरा। शायद इस एरा को कनिष्का ने शुरू किया था, लेकिन इसी एरा में इनकी डेटिंग मिलती है, और पहले शायद ये कॉइन्स ही मिले, इसीलिए इस एरा को क्या नाम रख दिया गया? शाका एरा नाम रख दिया गया। 78 AD। दो चीज़ें बस इनके बारे में जानो, शकाज की कॉइन्स के बारे में, वेस्टर्न इंडिया सिल्वर कॉइन्स, क्रोनोलॉजी, बाकी जो भी फीचर्स हैं। कास्ट कॉइन्स अब तो शुरू हो चुके हैं, तो वो होंगे ही होंगे। इन पे भी पोर्ट्रेट मिलता है। अब पोर्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, उतने डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस ये दो चीज़ जानो और आगे बढ़ते हैं। शकाज के बाद अमंग द फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज वी हैव कुशानाज हु कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वाइंस। और कुशाना क्वाइंस में बाकी वो सारे फीचर्स हैं, कास्ट क्वाइंस हैं, पोर्ट्रेट है, डेट्स है, लीजेंड्स हैं, वो सब तो रहेंगे ही रहेंगे। जो खास चीज़ इनके बारे में जानने के लिए है कि दे इशूड द प्योरेस्ट गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। इनके गोल्ड क्वाइंस सबसे प्योर हैं, बस एक चीज़ जानो इनके बारे में। प्योरेस्ट गोल्ड क्वाइंस शायद इसलिए कि ये सबसे रिचेस्ट भी थे, इसलिए कि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, एंड दे ऑल्सो कंट्रोल्ड मेनी ब्रांचेस ऑफ द सिल्क रूट्स। यू मे हैव हर्ड ऑफ सिल्क रूट्स पासिंग फ्रॉम चाइना टू मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, और उसके बहुत सारे ब्रांचेस थे, एंड कुशानाज कंट्रोल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया ऑल्सो। तो ऐसा लगता है कि दे वर रिचर देन अदर्स। सेकेंडली ये भी लगता है कि दे हैड एक्सेस टू द गोल्ड माइंस ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में गोल्ड भी मिलता है, एंड परहैप्स दैट इज द रीजन दे कुड सक्सीड इन इशूइंग द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये तीन फॉरेन रूलिंग डायनेस्टीज, और तीनों के कुछ अपने अलग अलग कंट्रीब्यूशन। हाँ, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स के लेकर इनका जो जनरल कंट्रीब्यूशन है, वो चीज़ हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लिख पाते हैं, अब इकोनॉमिक हिस्ट्री लिख पाते हैं, आर्टिस्टिक हिस्ट्री लिख पाते हैं, कल्चर की हिस्ट्री लिख पाते हैं, बहुत सारे हिंदू देवी देवता भी, बुद्धिस्ट सिंबल्स भी, बुद्धा के मूर्तियाँ भी, मतलब इस तरह के सारे पोर्ट्रेट वगैरह मिलते हैं। क्वाइंस का उस तरह से क्या यूज़ होता है इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में, ये बेसिकली मेन एग्जामिनेशन का हिस्सा हो सकता है, इसलिए मैं इस एरिया में नहीं घुसना चाह रहा। अभी हम लोग कुछ बस फैक्चुअल डिटेल्स देखते हैं, सिंस दिस इज रिवीजन क्लास। उसी तरह से हम आते हैं अब सातवाहनाज के बारे में। उनका एरिया दक्कन में था, और सातवाहनाज ब्राह्मणिकल रूलर माने जाते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म जैनिज़्म को काफ़ी प्रमोट किया। बुद्धिज़्म खासतौर से दक्कन में इसी टाइम पे फैलता है, और बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स उभरते हैं। आप याद करो कि प्लिनी टॉक्ड अबाउट 30-45 टाउन्स एंड सिटीज़, और इनकी इकोनॉमी काफ़ी डेवलप थी। इनमें ख़ास तौर से जानने वाली बात है कि हम कह सकते हैं कि वी हैव डिस्कवर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस। ये एक चीज़ जानो, ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइंस किसके मिले हैं, तो सातवाहना के मिले हैं। दूसरा कि यूज़ ऑफ चीप और चीपर मेटल्स,
प्रीसियस मेटल्स का इस्तेमाल कम हुआ है, यूज़ ऑफ चीपर मेटल्स, जैसे कॉपर है, ब्रोंज का इस्तेमाल हुआ है, टिन का इस्तेमाल हुआ है, पोटीन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दे आर पार्टिकुलरली नोन फॉर यूजिंग दिस लेड फॉर क्वाइन मेकिंग। इसके लिए जाने जाते हैं। लेड क्वाइंस के लिए अगर कोई डायनेस्टी जानी जाती है तो सातवाहना डायनेस्टी जानी जाती है। हाँ, इन्होंने सिल्वर क्वाइंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, फ्यू सिल्वर क्वाइंस। और इनके सिल्वर क्वाइंस में से जुड़ा एक लीजेंड है जो कि हम लोगों को थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी देता है। वो ये है कि एक शक रूलर है जिसका नाम है, सातवाहना रूलर है जिसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी, एंड देयर इज अ शका रूलर नहपान, and Saka rulers were known for silver coins. अब हुआ ये है कि वी हैव डिस्कवर्ड सम क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस ऑफ दिस शाका रूलर नहपाना री-स्ट्रक, उनको दोबारा स्ट्रक किया गया है विद द नेम दिस गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि शायद गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को डिफीट किया था। और चूंकि क्वाइंस आर ऑल्सो अ मार्क ऑफ पॉलिटिकल ऑथोरिटी, इस समय तक क्वाइंस इस तरह से परसीव किए जाने लगे थे, तो उसके सिक्कों को उसने दोबारा अपने नाम से ढलवाया, मेटल चेंज नहीं किया, वो सिल्वर के ही रहे। तो सातवाहना के सिल्वर क्वाइंस हो सकता हो कि शका के इन्फ्लुएंस में यूज़ किए गए हों या इस पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से, अदरवाइज दे आर नोन फॉर देयर चीप मेटल क्वाइंस। उनके बहुत ज़्यादा क्वाइंस मिलते हैं लेकिन उनको किसी कीमती मेटल से नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये है कि उनके जो क्वाइंस हैं वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। इसलिए माना जाता है कि वॉल्यूम ऑफ मोनेटाइजेशन सातवाहना के पीरियड में ज़्यादा था बाकी किसी भी डायनेस्टी से। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द सातवाहना पीपल, जिन्होंने ट्रेड कॉमर्स को भी काफ़ी प्रोमोट किया। जैसे इनमें एक रूलर है, उसके क्वाइंस पर कुछ सिंबल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यज्ञ श्री, ऐसे से ही लिखते हैं, यज्ञ श्री सतकर्णी। उसके क्वाइंस पे हमें शिप्स मिलते हैं, और किसी भी डायनेस्टी के क्वाइंस पर अगर शिप मिलें तो हिस्टोरियंस ने यह कंक्लूजन निकाला है, इनके केस में तो खैर निकाला ही है, कि दे टुक इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम ट्रेड एंड दे प्रोमोटेड मैरीटाइम ट्रेड, एंड दैट्स वाई ऑन देयर क्वाइंस वी हैव। प्लस पॉलिटिकल हिस्ट्री और भी जानने को मिलता है इनके केस में, सातवाहनास के केस में। हालांकि यहाँ पर भी पंच मार्क्ड क्वाइंस मौर्यन के टाइम वाले मिले हैं, लेकिन मौर्यन के बाद के डेवलपमेंट्स की बात हो रही है। दिस एरिया हैड बीन पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो एक रूलर है जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और इसके क्वाइंस पहली बार हमें ईस्टर्न दक्कन से मिलते हैं। तो यानी कि दो एरिया है सातवाहनास का, वेस्टर्न दक्कन, ईस्टर्न दक्कन, कुछ इस तरह से। सातवाहना ने पहले अपना पावर इधर डेवलप किया, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन इधर किया, आंध्रा एरियाज में। इस एरिया को किसने जीता था, अगर ये सवाल कभी पूछता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वाइंस ऑफ वशिष्ठी पुत्र पुलमावी फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज अ जनरल कंक्लूजन कि इट वॉज वशिष्ठी पुत्र पुलमावी who conquered the eastern part of the Deccan, making that part of the सातवाहना किंगडम और सातवाहना एम्पायर। इस तरह के कुछ पॉलिटिकल कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं इनके क्वाइन से। तो एक तो इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरस थी, ये पता चलता है इनके क्वाइन से। दूसरा कि इन्होंने शाकाज के ऊपर, खासतौर से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शाकाज को जीता था, दैट इज री स्ट्राइकिंग द क्वाइंस। और तीसरा इनका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ये भी इनके क्वाइन से हमें पता लग जाता है। और ये कि इन्होंने मैरीटाइम ट्रेड में इंटरेस्ट लिया था, और इनके मैरीटाइम ट्रेड में इनके सिक्कों के ऊपर हमें शिप मार्क्स मिले हैं। और इनकी यूनिक पोजीशन ये है कि दे इशूड क्वाइंस ऑफ लेड
इन लार्ज नंबर, ये इनकी एक अपनी यूनिक पोजीशन है। इतना कुछ सातवाहनास के बारे में। फर्दर अगर साउथ चलें तो वी हैव चोलाज, चेराज, पांड्याज। इनके भी क्वाइंस अपने हैं, गोल्ड के भी हैं, बस इनके क्वाइंस के ऊपर जो मार्क्स मिले हैं वो जान लो। जैसे चोला क्वाइंस के ऊपर आपको मिलेंगे टाइगर, चेराज के ऊपर मिलेगा बो एंड एरो, इसलिए इनको स्टेट सिंबल के तौर पे भी एक्सेप्ट करते हैं, और पांड्याज के क्वाइंस के ऊपर फिश। और जब बाद में चोलाज इंपीरियल चोलाज के तौर पे उभरते हैं अर्ली मेडिवल टाइम में, तो इंपीरियल चोलाज के जो क्वाइंस हैं उनके ऊपर भी ये तीनों मार्क्स मिलते हैं। जैसे टाइगर तो है ही बीच में, चोला सिंबल, साथ में फिश पांड्या सिंबल भी है, और साथ में चेराज का बो एंड एरो भी है। तो इन तीनों सिंबल्स को अगर इंपीरियल चोलाज ने अपने क्वाइंस पर रखा तो इसका मतलब था कि दे एक्सप्रेस्ड देयर सुपीरियर ऑथोरिटी ओवर द होल साउथ। उसमें वो एरियाज भी शामिल थे जो कभी पांड्याज और चेराज के हुआ करते थे। दिस वाज अबाउट राजराज चोल, राजेंद्र चोल, उनकी बात हो रही है, बाद की इंपीरियल चोलाज की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद अगर हम क्वाइंस की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में फिर क्वाइंस के लिए जो डायनेस्टी जानी जाती है पोस्ट गुप्ता के बाद, अगर पोस्ट मौर्यन के बाद आगे बढ़ें तो है गुप्ता टाइम, गुप्ता एज, जिसको कि हिस्ट्री में गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज कहने के बहुत सारे रीजंस हैं, सर्टेनली इकोनॉमिक रीजन उसमें से नहीं है, इसलिए उसको इससे कंपेयर नहीं करना है कि चूंकि गोल्ड के क्वाइंस उन्होंने बहुत सारे इशू किए इसलिए इनके फेस को गोल्डन एज कहते हैं। दैट इज नॉट द केस। तो गुप्ता एज इकोनॉमिकली माना जाता है कि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग टेंडेंसी की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए कि इनके क्वाइंस जो मिले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीसियस मेटल्स के मिले हैं, प्रीसियस मेटल्स। इनमें गोल्ड क्वाइंस और सिल्वर क्वाइंस। इनके गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस में यहां पर चंद्रगुप्ता फर्स्ट के कुछ क्वाइंस मिले हैं जिनको कहते हैं कुमारा देवी काइंड ऑफ क्वाइंस। ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थी जिसकी शादी चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ हुई थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। उस मैरिज को सेलिब्रेट करते हुए इन दोनों को गारलैंडिंग करते हुए दिखाया गया एक दूसरे से। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वाइंस अगर मिल जाते हैं तो हमें सोशल कस्टम्स वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। और सिल्वर क्वाइंस के साथ इनके जुड़ा हुआ है चंद्रगुप्ता सेकंड, बहुत ज़्यादा नहीं है। चंद्रगुप्ता सेकंड हु conquered the Shaka areas, the Shaka territories ऑफ वेस्टर्न इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कि किस तरह से उसने एक शका रूलर को डिफीट दिया था। ध्रुवा देवी एपिसोड से भी जुड़ा हुआ है ये। तो चंद्रगुप्ता सेकंड ऐसा लगता है कि जब उसने वेस्टर्न इंडिया पे कंट्रोल कर लिया उसके बाद उसने शका ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उस इलाके में सिल्वर कॉइन्स के ट्रेडिशन को बनाए रखा। सो इफ एनी गुप्ता रूलर हु इज एसोसिएटेड विद सिल्वर कॉइन्स, चंद्रगुप्ता सेकंड। इन जनरल गुप्तास आर नोन फॉर issuing coins of precious metals gold and silver। ठीक है। गुप्ता क्वाइंस की एक और खासियत है कि दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वाइंस। अगर एस्थेटिक सेंस देखा जाए, आर्टिस्टिक सेंस देखा जाए तो सबसे खूबसूरत क्वाइंस माने गए हैं इंडियन हिस्ट्री के। समुद्रगुप्ता भी एक रूलर है इनका जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके क्वाइंस भी मिले हैं और उसके क्वाइंस पर उसको म्यूजिशियन के तौर पे दिखाया गया है, फ्लूट बजाते हुए, बीना बजाते हुए। आर्चर के तौर पे दिखाया गया है, राइडर के तौर पे दिखाया गया है। ये सब पॉलिटिकल डिटेल्स में भी हम लोगों ने कभी देखा होगा। समुद्रगुप्ता के क्वाइंस खासतौर से थोड़े वेराइड हैं, उस पर उसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। और इनके क्वाइंस पे भी वो कॉमन फीचर्स हैं, पोर्ट्रेट भी है, लीजेंड्स भी है। बस पंच मागधी ऐसे हैं जिनके ऊपर पोर्ट्रेट नहीं है और लीजेंड नहीं है। अब क्वाइंस के ऑवर्स में क्या है, रिवर्स में क्या है, इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी मेरे ख्याल से जीएस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगी। तो एक जनरल ट्रेंड होना चाहिए हमें।
क्योंकि हाई वैल्यू क्वाइंस हैं गुप्ता टाइम के, तो कुछ लोगों का ये मानना है, कंक्लूजन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, कि ऐसा लगता है कि वॉल्यूम ऑफ मोनेटाइजेशन श्रिंक कर रहा था, इसलिए कि हाई वैल्यू क्वाइंस कैन नॉट बी यूज्ड इन डे टू डे एक्सचेंज एक्टिविटीज। तो फाहियान फिर यहाँ आता है, द फॉरेन ट्रेवलर, वंस अपॉन अ टाइम वी टॉक्ड अबाउट हिम इन द रिवीजन क्लासेस ऑल्सो। वो ये कहता है गुप्ता पीरियड से ही कि लोग ऐसा लगता है कि किसका इस्तेमाल करते थे, काउरीज का इस्तेमाल करते थे। तो फाहियान मेंशनिंग काउरीज, यूज ऑफ काउरीज इन द गुप्ता टाइम, to what extent these cowries compensated for the loss of or for the absence of coins of cheaper metals likely to be used by common people, that is something that we don't know. तो गुप्ता क्वाइंस के बारे में इतना जानो, और अगर सातवाहना और गुप्ता इकोनॉमी दोनों को कंपेयर करना हो क्वाइंस के बेसिस पर, तो ऐसा लगता है कि सातवाहना इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन दी गुप्ता इकोनॉमी, अगर क्वाइनेज की बात करें तो। लेकिन अगर एस्थेटिक सेंस की बात करें तो एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होता है गुप्ता में। गुप्ता गोल्ड क्वाइंस या गुप्ता के पीरियड के जो भी क्वाइंस हैं वो अपने आप में बेमिसाल हैं। बल्कि मैंने एग्जामिनेशन में पीएससी ने एक सवाल भी पूछा है कि गुप्ता के बाद एस्थेटिक सेंस इंडियन क्वाइंस का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि क्वाइंस का रिलेशन पॉलिटिक्स से है, क्वाइंस का रिलेशन इकोनॉमी से है। अगर इकोनॉमी में डाउनहिल टेंडेंसीज हो, अगर पॉलिटी में डाउनहिल टेंडेंसीज हो, तो क्वाइनेज सिस्टम पे फिर ध्यान किसका जाएगा। और अगर क्वाइनेज सिस्टम पे ध्यान नहीं जाएगा तो क्वाइंस में टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन या एस्थेटिक सेंस उभर कर आएगा कहाँ से। तो ये एक कनेक्शन है जो कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। गुप्ताज के टाइम पर अगर हम देखें तो हर्ष को उसको क्वाइंस के लिए नहीं जाना जाता है। चालुक्याज की अगर हम बात करें तो उनको भी उस समय तक साउथ में अगर देखा जाए तो वराह टाइप ऑफ क्वाइंस की अगर जब भी बात हो तो बस ये मान लेना कि साउथ की जो डायनेस्टीज़ हैं उनमें वराह सिंबल के साथ क्वाइंस का होता था। विजयनगर में भी वराह कंटिन्यू करता। विजयनगर के टाइम में एक पगोडा भी क्वाइंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसको पोर्चुगीज़ ने शायद ये नाम दिया था। फिर नॉर्थ में पोस्ट गुप्ता के बाद जो डायनेस्टीज़ हैं, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की वजह से या इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से उनके क्वाइंस हमें मिलते नहीं हैं आमतौर पे, जिसको कि आर.एस. शर्मा ने या बाकी हिस्टोरियंस ने एक नाम दिया है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ क्वाइनेज। और अगर पोस्ट गुप्ता क्वाइंस अगर मिले भी हैं तो उनमें वो ब्यूटी, वो सोफिस्टिकेशन नहीं दिखता या उतने नहीं मिले हैं। इक्का दुक्का किसी किसी डायनेस्टीज़ के क्वाइन अगर मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं। तो दिस इज डर्थ ऑफ क्वाइंस विच इज़ नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ क्वाइनेज इन हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी। इसको फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन से जोड़ते हैं, डी अर्बनाइजेशन से जोड़ते हैं, इंक्रीजिंग टेंडेंसीज टुवर्ड्स फ्यूडलिज्म से जोड़ते हैं। लेकिन फिर वो अभी हमारा हिस्सा नहीं है, अभी रिवीजन सीरीज में इन सब चीज़ों की बात नहीं हो सकती। इसके बाद माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स का रिवाइवल हुआ, इकोनॉमी का भी रिवाइवल हुआ, एंड वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज द थर्ड अर्बनाइजेशन। So third urbanization is associated with medieval time. First urbanization Indus Valley civilization, जिसके कॉइन्स नहीं मिलते। सेकेंड अर्बनाइजेशन गंगेटिक बेसिन, जिसके कॉइन्स मिलते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि किनके हैं। फिर उसकी कंटिन्यूटी में हम लोगों ने डिस्कस किया इंडो ग्रीक रूलर, कुशानाज, सातवाहनाज, दक्कनी किंगडम्स दैट इज संगम एज किंगडम्स, फिर गुप्ता तक चले आए। फिर अब क्या है कि अर्बनाइजेशन में डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि डी अर्बनाइजेशन की टेंडेंसी है, तो बहुत दिनों तक हमें क्वाइनेज नहीं मिलेंगे, जिसको कहा गया है प्रॉब्लम ऑफ क्वाइनेज। और फिर जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो वंस अगेन वी हैव इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, जिसको कहते हैं थर्ड अर्बनाइजेशन। पहले से ही टेम्पल अर्बनाइजेशन चल रहा था, उसमें टर्किश रूलिंग क्लास आके जुड़ गया जो कि अर्बन क्लास था। तो फिर से अगर इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी तो फिर से कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान कॉइन्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। बाकी सारे एक्सपेरिमेंट को छोड़ दो, मोहम्मद गजनी के भी कॉइन्स मिले हैं, मोहम्मद गोरी के भी कुछ कॉइन्स मिले हैं जिस पे हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ भी हैं। एक तो किसी कॉइन्स के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का भी नाम है, लेकिन ये सब पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार अगर दिल्ली सल्तनत में करेंसी सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने का काम किसी ने किया तो वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को जाना जाता है उसके दो तरह के कॉइन्स के लिए, जिसके लिए टंका और जीतल
वर्ड का इस्तेमाल होता है। टंका वाज मेड ऑफ सिल्वर, जीतल वाज मेड ऑफ कॉपर। ये दिल्ली सल्तनत के स्टैंडर्ड कॉइन्स बनने वाले थे, टंका एंड जीतल। फिर कॉइन्स को लेकर बलबन का कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी का भी नहीं है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग प्यार से MBT लिखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट में। कुछ लोग इसको प्यार से तो नहीं लेकिन क्रिटिसिज्म में पगला भी कहते हैं। और उसके पागलपन का एक कॉज ये भी बताया जाता है कि उसने अपने वक्त से आगे बढ़कर एक्सपेरिमेंट किए, एग्रीकल्चर में भी किया, पॉलिटिक्स में भी किया, आइडियोलॉजी में भी किया, तो क्वाइनेज सिस्टम में भी किया। उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया। तो पहली बार अगर टोकन करेंसी अगर कहीं दिखती है तो कहाँ दिखती है? दिल्ली सल्तनत में। एंड हु इज़ द रूलर? मोहम्मद बिन तुगलक। कॉपर के क्वाइंस थे लेकिन उनकी वैल्यू सिल्वर की तरह थी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए माना जाता है कि उस समय वर्ल्ड वाइड सिल्वर क्राइसिस चल रहा था और ये इंडियन रिस्पॉन्स था वर्ल्ड वाइड सिल्वर क्राइसिस का। फेल हो गया, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। इसके पीछे मेन रीज़न है काउंटरफीट, यानी कि नकली सिक्के। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उन सिक्कों को वापस ले लिया, उनके बदले में ओरिजिनल सिक्के दिए। अब आप सोच सकते हो कि स्टेट एक्सचेकर का कितना नुकसान हुआ होगा, और आप ये भी सोच सकते हो कि क्यों उसको लोग पगला कहते हैं। फिर MBT के बाद दिल्ली सल्तनत में फिर से कोई बहुत एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि नोटिसेबल हो और कॉइन्स को लेकर। हाँ, शेर शाह सूरी का टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शेर शाह सूरी खास तौर से जाना जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ रुपया, सिल्वर रुपया। ये जो रुपया वर्ड है हम लोगों के लाइफ में, सिल्वर रुपया, इसका डिनोमिनेशन भूल जाइए कि कितने का था, लेकिन सिल्वर रुपया की बात हो तो शेर शाह सूरी। इसको मुगलों ने भी कंटिन्यू रखा। मुगलों में अगर डेवलपमेंट होता है तो कुछ खास मुगलों में नहीं है, यही चीज़ें कंटिन्यू रखती हैं। मोहर एक वर्ड है, ये गोल्ड क्वाइंस है, अकबर ने इशू किया था। उसी तरह से इलाही क्वाइंस, यानी कि इलाही एरा से भी उसने क्वाइंस इशू किया। हाँ, दिल्ली सल्तनत में गोल्ड क्वाइंस को कहते थे शहनशाही। अगर पूछे कि शहनशाही क्या है तो ये भी गोल्ड क्वाइन है दिल्ली सल्तनत का। मोहर गोल्ड क्वाइन है मुगलों का। मुगलों में एक और चीज़ चलता था, दाम। मनसबदारी सिस्टम में कैलकुलेशन दाम में होता था, लेकिन दाम वाज परहैप्स एन इमेजिनरी क्वाइन, जिसमें कैलकुलेशन तो होता था लेकिन कोई पेमेंट नहीं होता था। आज भी होता है ना कि क्या दाम है, क्या कीमत है, किसी चीज़ को हम लोग इस तरह से देखते हैं। जहांगीर का बेटा है, सॉरी, अकबर का बेटा है जहांगीर, और जहांगीर को ना थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट था। तो एक मुगलों का क्वाइन है जिसको कहते हैं जोडियक काइंड ऑफ क्वाइंस, जोडियक क्वाइंस। उस पर कुछ साइंस वगैरह, सिंबल्स वगैरह बने होंगे, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वाइंस चलते हैं। फिर अगर और रिमार्केबल डेवलपमेंट की बात करें अगर क्वाइनेज के सिस्टम में, तब तक मुगल चले जाते हैं, ब्रिटिश रूल आ जाता है। 18th सेंचुरी में कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग प्रेसिडेंसीज में क्वाइंस ढालती है, क्वाइंस पे मुगलों का नाम भी रखती है। वी नो अबाउट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बक्सर, हम्बल सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्परर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दो काम किए। एक तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ क्वाइनेज, अगर पूछे कि कब हुआ तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ क्वाइनेज ये विलियम बेंटिक ने शुरू किया 1835 में। और 1835 में ही उसने एक और काम किया कि जो मुगल एम्परर का नाम होता था, नेम ऑफ द मुगल एम्परर रिमूव्ड, नेम ऑफ द मुगल एम्परर रिमूव्ड, ये था ब्रिटिश पैरामाउंटसी का डिक्लेरेशन। वी नो कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश रूलर्स वर ट्राइंग टू बिकम पैरामाउंट पावर इन इंडिया, और उसमें वो जो भी फैसिलिटीज़, पोजीशंस, प्रिविलेजेस एक्नॉलेज किए थे या दिए थे इंडियन रूलर्स को, सबको विड्रॉ कर रहे थे। उसमें उन्होंने
मुगल एम्परर का नाम सिक्कों से रिमूव कर दिया। सो 1835 में एक रिमार्केबल डेवलपमेंट ये होता है। फिर 1857 के बाद वी हैव रीस्ट्रक्चरिंग, और उसमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी शायद बढ़ती है, तो 1861 में पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की जाती है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। और टोकन करेंसी का मतलब है, जैसे कि हम लोग पहले किया था, जिसमें कि फेस वैल्यू और रियल वैल्यू में अंतर होता है। फेस वैल्यू इज़ हायर देन द रियल वैल्यू। तो पेपर करेंसी बेसिकली टोकन करेंसी ही है। अगर 100 रुपये के एक नोट में अगर टोटल खर्चा देखा जाए बनाने का, तो 100 रुपया नहीं होता होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 100 रुपये की। अभी कुछ दिन पहले शायद 5 के सिक्कों के साथ ऐसा हुआ था कि उनमें जो मेटल का यूज़ हुआ था, उस मेटल की कीमत 5 से ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों ने 5 रुपये का इस्तेमाल करने की जगह 5 रुपये को की होर्डिंग करनी शुरू कर दी थी, उसके मेटल को पिघला के बेचना शुरू कर दिया था। तो फिर शायद कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, है ना। फिर और कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट नहीं है। आज़ादी के बाद के सिक्कों को आप दूसरे पेपर में पढ़ते रहिए। तो मेरे ख्याल से ये कॉइन्स को लेकर एक छोटा सा रिवीजन सेशन था, एंड आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर दिस कोऑपरेशन।